Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My friend, in this class we start new topic, that is remainder theorem in polynomial. Okay, if you take two number, just you see, if you take two number, that is 15 and 2, what is remainder? Remainder क्या आएगा यहाँ पर? So first 15 divided by 2 7 times, here remainder becomes 1. 1 is remainder. Okay, here we see add the two number, but we want to see what happen and how to find remainder in polynomial when a polynomial divided by polynomial. Okay, हम लोगों को यही पढ़ना है कि पॉलिनोमियल में रिमाइंडर कैसे निकलेगा. ठीक है, अगर ऐसे ही कोई और नंबर दो ले लीजिए, ये 20 है, 20 एंड 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 20 divided by 3, remainder is 2. Okay, if we take two polynomial, that is 2x square plus 3x plus 2, okay, and divided by x plus 1, what is remainder? How we can find remainder of this question? Okay, so let us see now. First of all, here we see variable x, here 2x square. So first we multiply in x by 2x. Okay, that means quotient become 2x. Then here 2x square plus 2x. Okay, now subtracting, sign will be changed. Left 2x square minus 2x square cancel, and here x. Okay, plus how many times? Plus 1 times. So here becomes x plus 1. Now subtracting, cancelled, here 1. Then how we can write when polynomial 2x square plus 3x plus 2 divided by x plus 1. Okay, then remainder becomes 1. ओके, बेसिकली हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है. ठीक है, ऐसे ही आपको दो पॉलिनोमियल दिए रहेंगे और इसमें रिमाइंडर निकालना रहेगा. इस पर एक रिमाइंडर थ्योरम भी है, हम उसको स्टेटमेंट लिखेंगे भी और उसका प्रूफ भी करेंगे. ठीक है, तो पहले कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग. अगर एक एग्जांपल है यहाँ पर जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, ओके, डिवाइडेड बाय x. अगर हमें x से भाग देना है तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं. कैसे? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन x. नाउ 2x क्यूब बाई x प्लस x स्क्वायर बाई x प्लस x बाई x. ओके, here 2x square plus x plus 1. This is quotient. Remainder 0. Why? Because x divides 2x cube plus x square plus x completely. That means if a number or a polynomial divided by another polynomial and a remainder becomes 0, so that means first polynomial divides second polynomial. Okay, here अगर आप मान लीजिए px एक polynomial है और इसमें हम gx कोई दूसरा polynomial जिसे हम भाग दे रहे हैं. ठीक है, और भागफल कोई आ रहा है, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, qx मान लीजिए. ठीक है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर? 0. और रिमाइंडर को आप rx मान लीजिए.
ठीक है। तो अभी जब हम रिमाइंडर थ्योरम को करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ एग्जांपल नंबर 6, हम उसी को बना रहे हैं, देख लीजिए। कोई पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, x प्लस 1। तो आप चाहिए तो लॉन्ग मेथड से भाग दीजिए या रिमाइंडर थ्योरम लगाइए। तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा ही नहीं है तो उसको कैसे यूज करेंगे, नहीं, हियर वी कांट यूज रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट वी रीड रिमाइंडर थ्योरम एंड देन इट्स प्रूफ, okay, then we apply in this question remainder theorem, but we have not read remainder theorem, so we solve this question by long method. What is long method? 3x square plus x minus 1 divided by x plus 1. First of all, 3x times here 3x square plus 3x. Now sign will be changed, cancel here, minus 2x minus 1, minus 2 times minus 2x minus 2, and now sign will be changed, cancelled here, plus 1, remainder becomes plus 1. This is long method, okay. अब इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग भाग देते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर क्या होता है, डिवाइजर, आई होप यू नो, okay, here dividend, here quotient, and here what, remainder, okay. This is the figure representation of dividend, divisor, quotient and remainder, okay. And now what is the relation between dividend, divisor, quotient and remainder? So first you see here, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, okay. This is the formula. हम लोग यहाँ पर एक दो नंबर लेकर के पहले प्रूफ कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने क्या भाग दिया था स्टार्टिंग में, 15/2, अगर भाग देंगे तो क्या यहाँ आ रहा है, देखिए 7 टाइम्स 1 रिमाइंडर हो गया। नाउ हियर वी वांट टू प्रूफ दिस थ्योरम, हाउ यू कैन प्रूफ, लेट अस सी। व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर इज 2 into what is quotient, 7, and what is remainder, 1. So here 2 7 ja 14 plus 1, 15. That means dividend becomes 15, and here we also see that 15 is dividend. This is the formula of verification. And if here 4 variable, that is dividend, divisor, quotient and remainder. If 3 terms is given, so we can find another terms. That means if अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, डिवाइजर इज 2, quotient 7 and remainder is 1, then find dividend. How you can find? With the help of this formula we can find easily, okay. Now another question here, example 7 in your book, okay, example 7. Let us see now what is, yes, 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1 divided by x minus 1. If we divide this polynomial by x minus 1, what is quotient and what is remainder, okay. So here we want to
write 3x to the power 4. How you can write? If you multiply in x by 3x cube, okay? So minus 3x cube. Now sign will be changed. Minus, this is cancelled, and here 3 plus 3x cube, and here minus x cube minus 3x minus 1. Okay, now minus x square times, so here x cube plus x square. Okay, now sign will be changed, here cancelled, and here minus x square minus 3x minus 1. Now how many times? Minus x times, so minus x square plus x. Sign will be changed, cancel, and here minus 4x minus 1. Now how many times? Minus 4 times. Minus 4x plus 4, and sign will be changed, cancel, and here minus 5. Minus 5 is the remainder of the given question. Okay, you can write, if in your exam this question becomes, so you can write answer in this way. This is the long method, and now we want to study what is remainder theorem. Okay, what is remainder theorem? उसका statement, how we write statement of the remainder theorem and how we can prove. Okay, so आराम से आप देखिए, पेशेंस से, एकदम समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी, आप 2 से 3 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम तो आप बहुत आसानी से लगा, कैसे लगाएंगे आइए उसको देखते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या कहा कि पहले कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए px, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है और दूसरा है क्या, dx, ठीक है। तो हम px में gx से भाग दे रहे हैं और क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए qx हमने मान लिया, ठीक है, और रिमाइंडर को rx मान लिया। कोई जरूर नहीं परफेक्ट कांस्टेंट ही आए, कोई नंबर, कोई वेरिएबल भी तो आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिमाइंडर, ये टर्म्स यूज होंगे आपके, और ये क्या है, कोसेंट, और ये है डिवाइजर, एंड हियर डिविडेंड। ओके, तो हमने इसके पहले भी लिखा है आपको कि px इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग लिखते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस आर एक्स। ये तो फार्मूला अभी जस्ट इसके पहले हमने लिखा है, उसी के अनुसार हमने यहाँ इस टाइप से लिख दिया। ओके, रिमाइंडर थ्योरम में हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, या जैसे हमने ये gx हमने मान लिया कोई, इसको रिमाइंडर थ्योरम में हम x माइनस a मानेंगे। कहने का मतलब कि कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर है। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मूले को हम लिखेंगे और उसमें प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए इसका स्टेटमेंट, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। रिमाइंडर थ्योरम ठीक है, let px be any polynomial, let px be any polynomial of degree greater or equal to 1, okay, and let a be any real number, okay, if px divided by linear
linear polynomial x minus a. Okay, linear polynomial x minus a, then remainder is p at a. ये इसका स्टेटमेंट। अगर आपके एग्जाम में आ गया स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम, आपको ऐसे ही लिखना है। Let px be any polynomial of degree greater or equal to 1. Okay, and let a be any real number if px divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p at a. That means कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, देखिए पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री तो एक होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर डिग्री एक है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे हम काम कर नहीं रहे हैं, तो हमें पॉलिनोमियल पे करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या होगा, डिग्री कम से कम एक हो, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखिए, लेट px be any polynomial of degree greater or equal to 1, greater or equal to 1, and let px is divided by linear polynomial x minus a. Okay, the quotient is qx, हमने इसके पहले ये भी लिखा है, एंड रिमाइंडर इज rx. रिमाइंडर इज rx. देन फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। ठीक है, तो फार्मूला हमने इसके पहले भी लिखा ही था। कैसे लिखना है कि px डिवाइजर क्या है, x माइनस, कोसेंट क्या है qx, और रिमाइंडर क्या है rx। ये प्लस होगा यहाँ पर, प्लस rx। ठीक है, यही लाइन आपको लिखना है, और जैसे ही आप ये लाइन लिख लेंगे इसके बाद तो प्रूफ बहुत सिंपल है। यही ध्यान में रखना होता है कि कैसे हमें करना है। ठीक है, देखिए, सिंस, आगे लिखिए आप, सिंस डिग्री ऑफ x माइनस ए, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो जो rx होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, and degree of Rx is less than degree of x माइनस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लेस देन 1 है, और जब x माइनस ए का 1 ही है, ठीक है, तो हम 0 मान लेते हैं।
तो अगर डिग्री आर एक्स की 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा बताइए। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि आर एक्स की डिग्री 1 से छोटी तो 0 ही होगा, तो यानी वो कोई कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, देन, या ये लिख सकते हैं हम, दिस मीन्स दैट आर एक्स इज कांस्टेंट हो गया। तो हम कोई कांस्टेंट लिख देते हैं से आर। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा उसको देखिए आप, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ठीक है, प्लस आर, यही तो होगा, यही तो इक्वेशन के अनुसार आ गया। तो अब क्या करना है आपको, now at particular a polynomial becomes p at a equal to a minus a qx प्लस r। ठीक है, क्या है ये, प्लस r है। नाउ हियर 0, दैट मीन्स p at a इक्वल टू r, एंड r क्या है, रिमाइंडर। कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और कंप्लीटली नहीं करेगा तो कुछ आएगा, जिसको हमने एक कांस्टेंट r मान लिया है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ इतना ही है। कोई कठिनाई लग रही है आपको, एनी डिफिकल्टी यू फीलिंग इन दिस प्रूफ, लेट अस एक्सप्लेन अगेन। ओके, let px be any polynomial of degree greater or equal to 1 and a be any real number if px divided by linear polynomial x minus a then remainder is p at a। तो स्टेटमेंट जो होता है ना, प्रूफ लिखने के लिए हम लोग उसी में से डायरेक्ट लिखते हैं कि लेट px be any polynomial। अब देखिए दोनों लाइन सेम टू सेम उतार दिया गया है इसमें। ठीक है, मेन क्या है इसमें आपको याद कैसे लिखा जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, और डिग्री क्या होती है ये सब हमने इसके पिछले क्लासों में बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सब कुछ बता चुका हूँ। आप अगर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम का अगर आपको प्रूफ ये समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो लगा ही लेंगे, लेकिन इससे 2 से 3 लाइन 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा अब इसको देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल ही जो आपने दिया हुआ हम उसी को बताते हैं पहले। तो इसका ये प्रूफ हो गया, यहीं तक है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। व्हाट इज रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर निकालना है। एक तो लॉन्ग मेथड है, आपको आप भाग दीजिए या रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करिए, तो हम यहां पर करेंगे उपयोग। ओके, तो आप एग्जाम में अगर आ गया कैसे लिखेंगे तो आप लिखिए यहां पर लेट पी एक्स इक्वल टू, आप मान लीजिए पॉलिनोमियल
प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है, ये हमने px मान लिया, ठीक है। एंड अब जीरो कैसे निकालते थे, तो आप सीधे लिखिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज 1, ये कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए अगर x माइनस 1 है तो हमें जीरो लाना है, तो x की जगह पर हम इसको जीरो इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 1, ये इसका जीरो हो गया, और जीरो का मतलब क्या होता है रूट, ठीक है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, अब आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है कि नाउ t एट 1, मतलब जो इसका रूट्स है उसी को वैल्यू इसका फाइंड आउट करिए, क्या आ रहा है देखिए 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस, ये आ गया है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है प्लस 2, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया 2, लेकिन आप कैसे लिखेंगे, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम इफ x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1, then remainder becomes 2। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखिए करना क्या है, हमने रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग कर लिया और इस तरह लगा दिया। अब ऐसे आप भाग दीजिए खूब बड़ा सा, वैसे भी लगा लेंगे, वैसे भी भाग देंगे तो भी आएगा, लेकिन बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मैं उसको भी कर देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से लगाइएगा, ठीक है। अब बड़ा वाला मेथड क्या है उसको देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। क्या था x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और किससे भाग दिया गया है x माइनस 1। चलिए बड़ा वाला मेथड देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स क्यूब टाइम्स x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये तो कट गए, ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब, सबको उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा प्लस 2x स्क्वायर टाइम्स यानी 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, दोनों कट गए, यहाँ पर उतरेगा क्या x प्लस 1, कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम्स, तो x माइनस 1, साइन चेंज होगा, क्या आ गया प्लस 2। आप इस तरीके से लगाइए या वैसे लगाइए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम और इस पर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन आप इस पर काम करेंगे निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था इसका, इस पर हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब जो है इसके बाद जो आपका इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, एक वीडियो उस पर रहेगा। ये बेसिक था, आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो नाउ वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास with exercise 2.3 and this exercise based on remainder theorem. Okay, we will meet you in next class. Thank you very much.